ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਟੋਲ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ INLD ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BJP ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿੱਲ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ? ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਧਰਮ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਛਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਔਰ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ BJP ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ MLAs ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਇਹ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜਾਟ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਕਸ਼ਣ 6% ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਹਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਪਨ 6% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 5 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਤਿਆਗੀ ਨੇ, ਜਾਟ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਔਰ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 10% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕਸ਼ਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੋ ਵਿਧੇਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਈਵਨ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਰਕਸ਼ਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਵੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਵੇ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਰਵੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 67% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੈ? नहीं, बिल्कुल भी आई वॉश नहीं है। चुनाव से पहले मैं इस आरक्षण आंदोलन से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के नाते भी और हमारी लीडरशिप ने चाहे वो हरियाणा की हो चाहे केंद्र की हो जाट आरक्षण को लेकर के हमारा स्टैंड पहले दिन जो था वो आंदोलन के शुरू होने से पहले भी था, आंदोलन शुरू हो गया उसके दौरान भी था और जिस दिन समाप्त हुआ उस दिन भी था, आज भी है। हमने कमिट किया था कि हम इन समुदायों को उनकी जो उनका अधिकार बनता है वो उनको दिलवाएंगे। इशू केवल इतना है जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर ये है कि 50% वाली जो कैप है उससे निकलने के रास्ते उपलब्ध हैं, तकनीकी रूप से रास्ते उपलब्ध हैं। आपको जानकारी होगी
कि तमिलनाडु में ऑलरेडी आरक्षण 50 से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है। तमिलनाडु में हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? बिल में क्या स्वरूप आएगा उस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा जब तक बिल आधिकारिक रूप से ना आए। में पेश होगा तो उसके ऊपर चर्चा होगी। तकनीकी रूप से जो कांग्रेस ने किया और जो हम करने जा रहे हैं उसमें एक तकनीकी अंतर जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि कांग्रेस ने जाटों को या जाट समेत और जो 5 बिरादरियां और थी उनको आरक्षण देते समय जो होमवर्क करना चाहिए था, जो जमीनी तैयारी करनी चाहिए थी, जो वैधानिक तैयारी करनी चाहिए थी, वो की नहीं और एक आदेश जारी करके एक नोटिफिकेशन से उनको आरक्षण दे दिया जाते जाते चुनाव से 5 दिन पहले। ठीक है। और वो इतनी कमजोर फुटिंग्स पर था कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो वो ठां से उसको ध्वस्त कर दिया। आधार क्या बना कि नेशनल कमीशन जो है बैकवर्ड क्लासेस का, उसने भी उसकी खिलाफत की थी। अब आप कहेंगे जी अब नेशनल कमीशन अब क्या करेगा? बिल्कुल। उसमें एक तकनीकी पेंच ये है कि इंदिरा साहनी की जो एक बड़ा मामला मंडल के बाद के दिनों में एक आया था, बहुत बड़ा केस है सुप्रीम कोर्ट में, उस केस में ये तय हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 50 से ऊपर तो जा सकता है, राज्य में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि आपका उसको देने का आधार एक स्टैट्यूटरी जो कमीशन हो स्टेट में बैकवर्ड क्लासेस के स्टेटस का अध्ययन करने के लिए, वो उसके द्वारा बैक्ड लीगल तरीके से आप अगर कोई चीज देंगे तो वो हो सकती है। तमिलनाडु में हमारे सामने है। हमारी तरफ से जो होना संभावित लगता है, मुझे लगता है तकनीकी रूप से वही मार्ग अंततोगत्वा निकलेगा कि हम उस सारे को एक वैधानिक स्टेटस देने वाले हैं और हमको विश्वास है कि वो संविधान की किसी व्यवस्था के खिलाफ नहीं होगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी मान लीजिए कल को कोई चुनौती देता है तो वो वहां ठहरेगा और इसको अहिवाश नहीं कहना चाहिए। ये तो बाद की बात है। ढोल साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी इसका लगातार डिमांड करती आ रही है, जो अभी प्रारूप उसका जो मुख्य तौर पे सामने आ रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जाट आरक्षण की मांग क्या आप समझते हैं अहिवाश है? नहीं, मैं आपको ये क्लियर बताना चाहूंगा कि जाट आरक्षण की जो मांग है, एक तो सबसे पहले हमें ये समझनी चाहिए कि आज की नहीं, ये बहुत पुरानी मांग है। इसमें पहले भी आयोग बने हैं, गुरनाम सिंह कमीशन भी बना था मंडल के बाद में, उसमें 1990 में आरक्षण दिया भी गया था, जिन्हें चौधरी भजनलाल की सरकार ने 1994 में उसे विड्रॉ भी कर लिया था। बाद में भी इसकी डिमांड होती रही है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बात तो ये है कि मामला नया नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसको हम समझें कि हम कह रहे हैं ना कि 50% से ऊपर जाएगा तो यह टिकेगा नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान में, भारतीय संविधान में एक प्रोविजन है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल के अंदर जो है संविधान के निर्माताओं ने जो प्रोविजन दिया है उसके अंदर उन कानूनों में डाला जाता है जो कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। कहने का मतलब यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के या उच्च न्यायालय के जुडिशियल रिव्यू से बाहर जो कानून है, जिन्हें सरकार यह चाहती है कि सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे जो है जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहें, इस प्रकार के कानूनों को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। तमिलनाडु का मामला जो हमारे मित्र ने बताया है, यह भी मामला जो है 69% वहाँ पर रिजर्वेशन में, आपको बता देता हूँ तमिलनाडु में, वहाँ भी 9th शेड्यूल में स्पेशल इसको डाला गया है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो आज के दिन में इसके नेशनल, जिस तरह स्टेट में बैकवर्ड कमीशन जो बना है, बैकवर्ड कमीशन निश्चित रूप से ही आवश्यक था। इंदिरा साहनी जजमेंट जो है, जिसे मंडल कमीशन की जजमेंट के रूप से भी जाना जाता है, मंडल कमीशन जजमेंट के अनुसार बैकवर्ड कमीशन का यहाँ पर होना जरूरी था, जो कि पहले की सरकार ने नहीं किया, उन्हें करना चाहिए था। और दूसरी बात थी, उनकी समस्या यह थी कि वो बाय वे ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया था उन्होंने। तो आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट अभी ठीक ट्रैक पे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो है इसके लिए लड़ाई बहुत लंबी रहेगी। अभी आज मंशा, पहली बात तो यह है कि मामला ये अभी तक विधानसभा में पेश नहीं हुआ है। जब होगा वहां पर चर्चा होगी, सरकार किस रूप से, किस प्रकार से इसको देखेगी, क्या इसके लिए पार्टी व्हिप जो पॉइंट्स कौशल जी ने बताए हैं उसको देख के आप क्या समझते हो कि क्या ठीक ट्रैक पे जा रहा है ये बिल? देखिए, पॉइंट जो है, एक बात को मानिए कि जो डिमांड थी, शुरुआत से ही जो डिमांड थी बीसीबी में इंक्लूड करने की थी, यहाँ पर एक नई कैटेगरी बना दी गई है बीसीसी, तो उसके कारण से जो है 50% से बेउंड चला गया है ये। क्योंकि देखिए, बीसीबी जो बनी थी कैटेगरी, वो बनी थी एग्रो कम्युनिटीज के लिए, यानी कि जो कम्युनिटीज जो है किसी भी उसमें राज्य में जो
अपने खेती बाड़ी के ऊपर रहती हैं, वहां पर जो जाटों को छोड़ करके सभी कम्युनिटीज को उसमें डाल दिया गया। उस समय पर चौधरी भजनलाल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने निकाल दिया उसको, जाटों को वहां से निकाल दिया। दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं तो उस समय पर ही दिया जा चुका था। लेकिन एक और चीज है, ये अभी विधानसभा के पटल पर ये आएगा, वहां पर बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग में भी इसमें कई प्रकार के स्वर सुनने को आए थे। सबसे पहले तो आवश्यक है जी, आवश्यक है कि पार्टी जो है, पार्टी के लिए आवश्यक है व्हिप जारी करे, ताकि कोई भी विधायक जो है इस बिल के लिए कोई भी खिलाफ ना जाए, ये अति आवश्यक है। एक तो मैं ये जो विद इन द पार्टी कंसेंसस की बात भी ये जो बार-बार बात कही जा रही है कि विद इन द पार्टी कंसेंसस नहीं है। डेमोक्रेसी में सबको अपना विचार रखने की का अधिकार होता है। जब तक हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते सिद्धांततः, सब पार्टियों में खूब खुलकर विचार विमर्श होता है। हमारे यहाँ तो होता है, कुछ दलों में नहीं होता होगा, उनकी अपनी अनडेमोक्रेटिक चाल है। जब मतभेद हो जाते हैं तो लीडर यही बोलते हैं कि हाँ जी हमारा परिवार है, इसमें खुल के विचार होता है। कौशल साहब एग्री होंगे मेरे साथ। सिद्धांत रूप में हम पहले दिन से कह रहे हैं, हम आरक्षण देंगे, जिनका अधिकार बनता है वैधानिक तरीके से देंगे। एक बात हमारे इनेलो के मित्र कह रहे थे कि प्रदेश कार्यकारिणी में कई तरह के स्वर उठे। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कल मैं भी था पूरा समय। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, मैंने एक आध मिनट के लिए भी वो प्रदेश कार्यकारिणी नहीं छोड़ी, पूरे समय में वहां मौजूद था। आरक्षण के सवाल पर उस तरह का कोई इस तरह का स्वर जो डिफरेंट हो पार्टी की मेन लाइन चिंतन से कम प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आया। मंत्रिमंडल में भी या पार्टी के कोर ग्रुप में भी जब चर्चा हुई होगी, निश्चित रूप से अल्टरनेटिव ओपिनियन आए होंगे, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन पार्टी लाइन तय है, ठीक दिशा में है। हाँ, एक बात जो मैं जोड़ना चाहता हूं, जो कौशल साहब ने भी कहा, आपने भी प्रश्न उठाया, सेंट्रल जॉब्स में आरक्षण का एक बड़ा प्रश्न है। इसमें केवल राज्य के आरक्षण का मामला नहीं है। सेंटर में जाटों को आरक्षण मिले, वो मामला अटका हुआ था राज्य में, उसके लिए राज्य को उसके लिए दरवाजा खोलना था। मुझे यह विश्वास है कि अब जिस भी रूप में विधेयक आएगा और कमीशन गठित होता है, आपका फैसला बड़े स्तर पर जाएगा, उसके रास्ते नहीं, सुनिए, राज्य के मामले में हम अधिकृत हैं। हरियाणा की विधानसभा, हरियाणा का मंत्रिमंडल जो निर्णय लेगा वो पार जाएगा। केंद्र का जहां तक मामला है, उसके लिए दरवाजा भी हरियाणा के रास्ते से जाता था, पुराने वालों ने खोला नहीं, हम वो दरवाजा खोल देंगे और कोई बाधा रहने वाली नहीं। मैं इस पे डिटेल्ड इनका रिप्लाई लूंगा। ਜਿਹੜਾ चौहान साहब ने 2-3 पॉइंट उठाए है, क्योंकि ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਹਲੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਰੂਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। लेकिन जिथे तक मोटे तौर पे जो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, कैबिनेट ने विदाउट देखो इस तरह है, जेड़ा साडे टाइम ते जेही नोटिफिकेशन हुई सी ਉਹਦੀ ਆ ਕਾਪੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਆਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਚਾਹੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੂਪ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਤੀਆਂ, ਛੱਡਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। कौशल साहब ठीक ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ठीक समझ गया। मैं एक क्षण के लिए मुझे एक मिनट, कौशल साहब ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੂਲਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰਲ ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ कराने या ਉਹਦੇ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂट्स कर ਲੈਣ। मेरा मतलब है बहुत जरूरी इंटरवेंशन बनता है क्षमा की याचना के साथ। जो जाट आरक्षण का प्रोविजन भाई लोग भागते भागते चुनाव में जाते हुए करके गए थे वो पेंडिंग कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, पेंडिंग नहीं था। हमारे पास ये प्रश्न आया कि पिछली सरकार जो आरक्षण देकर गई थी जाटों को, सेंट्रल जॉब्स की जहां तक बात है, उसका हम उसको डिफेंड करें, हम उसको छोड़ दें यूं का यूं। जो कौशल साहब ने कहा हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, हमने कहा हम उसको यूं ही नहीं छोड़ेंगे, हम उसको डिफेंड करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। जिस भी अवस्था में जैसा कैसा ये देकर गए थे हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर हमने कहा कि एक मिनट, आप इसको नया बिल बोलते हैं या उसी को दुरुस्त करके? मैं थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए। आप कहते क्या हैं उसको? चलो ये बता दीजिए। सुनिए तो उसे नया आएगा डेफिनेटली। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये तो बिल लाए ही नहीं थे। इशू ये है कि ये कोई कानून थोड़े ही लाए थे, ये तो नोटिफिकेशन जारी करके चले गए और नोटिफिकेशन को कोर्ट ने उड़ा दिया। और एक क्षण के लिए एक क्षण सुन लीजिए, गलत बात कह रहे हो, अभी तक उड़ा नहीं। वो देखो इन्होंने पहले वहां पे इन्होंने पहले गलत बोला। के अंदर मुझे पूरा करने दो यार, मुझे बताने दो। भी वेट कर रहे हैं ना, तो एक कमेंट मैं फैक्चुअल पोजीशन क्लियर कर दूं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जाटों को आरक्षण देने का जो सेंट्रल नौकरियों में प्रोविजन था उसको निरस्त कर दिया मोदी सरकार ने। उसको जाकर के अपील में हम गए, हमने अनुरोध किया सुप्रीम कोर्ट से, उसको बचाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीबीसी इसके खिलाफ है, आपने अमुक अमुक तैयारी के बिना आपने दिया है, ये गड़बड़ हुई है। वो वहां ध्वस्त हो गया, हमारे पास रास्ता नहीं बचा। बात आई राज्य में आरक्षण की। राज्य में जो इनकी नोटिफिकेशन थी स्टेट की नौकरियों में, वो लोगों ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट वो भी चले गए स्टेट के मामले में लोग, उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर आरक्षण नहीं बचा तो ये भी गलत है। हमने वहां पर स्टैंड लिया, आज भी हम वहां खड़े हैं। अगर उस कोर्ट केस की, उस पेंडिंग केस की बात करें, हम उसको डिफेंड कर रहे हैं। मैं उससे अगली बात कहता हूं, अब हम क्या कर रहे हैं? वो कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में उस लाइन पर ध्वस्त हो चुका है, इसके भी ध्वस्त होने का खतरा है। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो खामियां ये छोड़ करके गए वो दुरुस्त हो जाएं और किसी भी अदालत में, चाहे माननीय उच्च न्यायालय हो चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, वो चीज आपको भी कोई शक शुबा है? नहीं, ये फैक्ट्स हैं। नियत मैं आपको बता रहा हूँ कि यही तो समस्या है ना कि इस बात को गंभीरता से लेना आवश्यक इसलिए है क्योंकि अभी तो एक दूसरे के ऊपर डाला जा रहा है। अभी तो एक स्टेज क्लियर हुई है। देखिए अभी कैबिनेट से गया है, फिर हरियाणा विधानसभा से जाएगा। यदि इसको 9th शेड्यूल में लेकर के जाना है तो यह लोकसभा में भी जाएगा, राज्यसभा में भी जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। देखिए अब इसके अंदर समस्या ये आती है कि अभी इसकी लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है, ठीक है। और जो स्टेट के अंदर है, मैं मानता हूँ एसबीसी का जो कोटा दिया था उसका एक मैटर स्टेट के अंदर भी, हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग है, माननीय हाई कोर्ट में वो एडमिट पड़ा हुआ है, उसके अंदर भी थोड़ा प्रयास किया जाए। लेकिन अब तो क्योंकि अब नया बिल आ गया है तो पुराना आरक्षण का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो वैसे ही चला जाएगा, अपने आप ही निरस्त हो जाएगा। और वो बिल भी नहीं कानूनी रूप से वह सिर्फ एक नोटिफिकेशन थी, देखो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से साथ गजेटेड नोटिफिकेशन थी। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट है क्योंकि, तो इसको जो है ना केवल न्यायालय भी गंभीरता से देखेगा, ठीक है। और उसके बाद में जब आवश्यक है कि हम इसे 9th शेड्यूल में डालेंगे, यदि हम इसे 9th शेड्यूल में नहीं डालेंगे तो हम मंडल कमीशन की जजमेंट के अनुसार इसे किसी भी एक हालत में डिफेंड नहीं कर पाएंगे। सवाल ये है कि ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਏਗੀ ਨਾ कि तुसी चोणा दे मद्देनजर कीता। 9 साल पहले सत्ता में ही थे, पूरा 9 साल का समय था इनके पास। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਾਪੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ 2013 ਦੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਆ 2013 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2013 ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ कोर्ट दी जड़ी है वो घट जाएगी, इंटरवेंशन घट जाएगी। और दो चीजों को कंफ्यूज विजय जी ना किया जाए, मैं फिर कह रहा हूं, राज्य में आरक्षण और केंद्र में आरक्षण, ये 13 की जो नोटिफिकेशन है ये राज्य में आरक्षण की है। हम आज भी उसको डिफेंड कर रहे हैं, और सेंटर में आरक्षण वास्तव में जाते 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 देखे गए। दूसरी गल ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਢਿੰਗਰਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2013 ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਉਹ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਢਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ 13 ਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਏ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖिए ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ 2013 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। मंशा कांग्रेस की या भारतीय जनता दोनों की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताना चाहूंगा। आज दिल्ली जंतर मंतर पे एक बैठक हुई है, उस बैठक के बारे में आपको ना पता हो, माननीय सांसद हैं राजकुमार सैनी जी, और वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने हरियाणा के लिए तो मांग की है। उन्होंने उनकी एक बड़ी मजेदार मांग है, वो ये कहते हैं कि राजस्थान से भी जाट और बिश्नोइयों को ओबीसी से बाहर किया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक तरफ तो ये रूप लेकर के बैठे हैं हरियाणा में, हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर, और हरियाणा के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी मंशा को स्पष्ट बता रही है तो देखिए एक बात तो सोचने को मिलती है कि परिवार में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता ही है, फिर रोका जा सकता। आवश्यक था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद को इस तरह के समय पर, जबकि कैबिनेट में इसकी चर्चा होनी है और जब इसका बिल स्टेट के असेंबली के अंदर रखा जाना है, केवल हरियाणा नहीं राजस्थान के मुद्दे को उठा करके बैठे हैं, तो मंशा की तो समस्या रहेगी। ठीक है ना, ये एक बड़ी गंभीर चीज है। और जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की है, आखिरी समय पर स्टेट के अंदर जो दिया था, जो 2013 के अंदर दिया था, ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। जो सेंटर के अंदर दिया था वह जाति सरकार में आखिरी 5-6 दिनों में दे करके गए थे, वह जो है खारिज हो गया। उस बिना पर ही हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डली, और वह पिटीशन जो है उसके अंदर वह लटका हुआ है, अभी तक एडमिट पड़ा हुआ है। वह माननीय हाई कोर्ट ने अभी तक उसको सुनाया नहीं, उसे सुना नहीं है। और इन बिटवीन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही वहां पर लेटर जारी करके और वो हाई कोर्ट के अंदर एक स्टैंड लिया, और स्टैंड के अनुसार उन्होंने कहा कि अभी के लिए जो है हम इसे विड्रॉ कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं एक आखिरी ब्रेक ले लूं। इसलिए एडमिट रखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट के अंदर ये स्टैंड लिया है कि हम इसे विड्रॉ कर रहे हैं। हम दूसरा प्रारूप ये नहीं कह सकते कि इनकी मंशा हाई कोर्ट में हम उस नोटिफिकेशन को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने आपको बाकायदा एप्लीकेशन लगाई है, फैक्ट्स ये हैं, एप्लीकेशन लगाई वहां पर आपने। सुनिए, हम वहां पर उसको डिफेंड कर रहे हैं, हमने सेंटर में भी डिफेंड किया। सवाल ये है कि ये उसको दे इस अंदाज में गए थे केंद्र में, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब वो मामला आया तो हमारे लिए डिफेंड करना संभव ही नहीं। एनसीबीसी इनका था, देखिए एनसीबीसी इनका था, कुमारी शैलजा कुछ और बोलती थी, कांग्रेस की शेष सरकार कुछ और बोलती थी। हमारे तो राजकुमार सैनी अगर कुछ कह रहे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। आपको अपने गिरेबान में पहले झांकना चाहिए। और हमने राजकुमार सैनी जी अगर पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं तो हमने उनको नोटिस जारी किया। कौशल साहब, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ,
ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਲਟਕ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜਬੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਜਾਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਮਜਬੂਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਡੇ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ SYL ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ 33% ਰਹਿ ਗਏ, 67 ਅਗਰ ਆਰਕਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 33 ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ 33 ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਨਰਲ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ 33 'ਚ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲੇ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सियासी पार्टियां सिर्फ वोट बैंक ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਦੀਆਂ। नहीं, केवल इसमें निसंदेह वोट बैंक महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह सकता कि वोट बैंक की कंसिडरेशन कहीं है ही नहीं, लेकिन ये केवल वोट बैंक का प्रश्न नहीं है। इस देश में जो जाति व्यवस्था है वो इतनी गहरे है, कुछ लोगों को लगता होगा जाति समाप्त हो गई या जाति समाप्त होने जा रही है। जाति तो आजादी के बाद कहीं ना कहीं मजबूत हुई है, और जातीय व्यवस्था में कहीं ना कहीं शोषण भी उसका एक हिस्सा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोग डिप्राइव हो गए थे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी व्यवस्था की गई। तो आरक्षण की एज सच थ्योरेटिकली कोई आवश्यकता नहीं बची, वो सिस्टम एकदम अंडू कर देना चाहिए, ऐसी स्थिति आज नहीं आई, कल को आ जाएगी तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। वैसे कौशल साहब जो कह रहे थे लाइटर वेन में जो कौशल साहब कह रहे थे, सुनिए तो सही, जो कौशल साहब कह रहे थे लाइटर वेन में, मैं उसको लाइटर वेन में सपोर्ट करता हूं कभी कभी, और ये सोशल मीडिया पर भी चलता है कि हो सकता है कभी वो दिन आए जब 100% आरक्षण हो जाए तो झगड़ा समाप्ति हो जाएगा। एक बात जो बार बार आप कह रहे हैं उस पर मेरी ये टिप्पणी है कि भाई डंडे से कर दिया, मजबूरी में कर दिया, नहीं। जब आंदोलन हुआ, वो दोबारा वो आपके जो यशपाल मलिक हैं उनकी स्टेटमेंट है, वो सब बोलते हैं कि हमने सब कमीशन के टेस्ट दे चुके हैं, सिर्फ अब लाठी टेस्ट ही बचा है। देखिए वो क्या कहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, वो क्या कहते हैं उसके कोई अर्थ नहीं है। मैं फिर कहता हूं, जिस दिन जाट आरक्षण का हालिया आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था, उस दिन भी हमारी कमिटमेंट थी, उससे पहले भी हमारे नेतृत्व की कमिटमेंट थी। जाट आरक्षण शुरू का आंदोलन शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री से मिलने आए लोग, अलग अलग गुटों के आंदोलनकारी लोग, उस दिन भी हमारी कमिटमेंट थी, जिस दिन खत्म हुआ उस दिन भी हमारी कमिटमेंट थी। केवल एक गड़बड़ है, आंदोलन हुआ राजनीतिक कारणों से, सरकार को अस्थिर करने के लिए कुछ लोग साजिश करना चाहते थे। वो कमिटमेंट की बता रहा हूं, जो 16 फरवरी को जो मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री के साथ में, उसी कमिटमेंट की बात कर रहे हैं। उस मीटिंग ने तो बजाय इसके कि आरक्षण की इशू को सॉल्व किया जाए, सारा का सारा इशू उलझा दिया। SBC बनाया, SBC के अंदर जो है आपने इकोनॉमिक आधार पर कर दिया, 6 लाख रुपए इनकम की सीलिंग कर दी। वह तो बिल्कुल ही ऐसा फार्मूला था जो कि किसी भी कीमत पर न तो कानूनी था और न ही कानूनी रूप से टिक सकता था। जहाँ तक बात आर्थिक आधार पर आरक्षण की है, वह माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, इसी कारण से इसका आरक्षण नहीं दिया जाता है।
आरक्षण का आधार सिर्फ जाति है हिंदुस्तान में, और जब जातीय व्यवस्था समाप्त होगी उसके बाद में ही इसे समाप्त किया जा सकता है, उसके बिना बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज भी ये समस्या है कि वे जातियां जो हैं, जो कोई भी जाति हो, वह अपने अपने कार्य में ही अधिकतर, खासकर ग्रामीण लेवल पर अपने ही कार्य में वे व्यस्त हैं। वो अपने क्रॉस जो है, मान लीजिए कोई भी कम्युनिटी की बात कर लीजिए, बहुत कम देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में। सभी कम्युनिटी की होती देखो, है ना, वोट तो वोट की समस्या सभी नहीं, कम्युनिटी की है। फिर आप एक पर्टिकुलर जाति को सपोर्ट करोगे या उसका जो आंदोलन है उसको सपोर्ट करोगे तो फिर बाकी खिलाफ हो जाएंगे। वोट की समस्या नहीं है यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ। समस्या जो है, ये जातीय व्यवस्था बहुत लंबे समय से यहाँ पर चल रही है। अलग अलग जाति को अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं, वे कर भी रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में यदि हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ भी अभी लगभग बदला नहीं है। वहाँ पर वही कोई भी जाति हो अपना अपना कार्य जैसे ये कर रहे हैं। रिजर्वेशन मिलती रहेगी तो फिर बदलेगा कैसे? देखिए 10-10 साल के लिए एक्सटेंड करना, जब संविधान बना था उस समय पर यह हुआ था कि 10 साल के अंदर हम रिजर्वेशन को विड्रॉ कर लेंगे। शेड्यूल कास्ट के लिए जो बनी थी उसके बारे में भी कहा गया था, लेकिन अब हर 10 साल के बाद में उसको जो अलग अलग बिल के द्वारा बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। इसके ऊपर एक वृहद चर्चा की आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता की इससे अधिक आवश्यकता हमारे पास में यह है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों को जो वहाँ पर हैं, उनको जो है अपने उनका रोजगार जो है और उनकी जो अपनी जो कमाई के जो साधन है, उनको ये प्रेरित किया जाए कि आप इनको छोड़ करके और आगे बढ़े, ताकि जो है जातियां आपस में एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट होगी, जातियां आपस में मिक्सअप होंगी, उसके बाद में ये समस्या हल हो सकती है। आज के दिन में नहीं हो पाएगी ये समस्या। देखो, मैं तो सीधी बात, इनको भारतीय जनता पार्टी के चेहरे की बात है बेसिकली। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कई चेहरे हैं। आपको बताता हूं मैं, जाट मंत्री इनके और जाट नेता इनके आरक्षण के पक्ष में हैं। इनके जो नॉन जाट नेता हैं वो आरक्षण के अगेंस्ट हैं, और जहां तक इनका केंद्र का नेतृत्व है वो ये सीधी बात में दोनों धड़ों को सपोर्ट कर रहा है। एक नॉन जाट धड़े को भी सपोर्ट कर रहा है और जाट धड़े को भी सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ से सैनी का धड़ा और वो उसके साथ मंत्री और उसके साथ लोग, एक तरफ कैप्टन अभिमन्यु के साथ लोग और उनके लोग, दोनों धड़ों को बांधने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं बीच में वो उस वजह से ही ये सारा मामला जो है, और कोई ये इनकी मंशा में सवाल है, इसी वजह से बिल्कुल खिलाफ है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, कैप्टन अजय यादव अभी सरकार में नहीं है, सरकार में इस समय भारतीय जनता पार्टी है, और सेंटर ने जो दो धड़े अंदरूनी बांट रखे हैं, ये आरक्षण में मंशा पे सवाल है, क्योंकि ये आरक्षण देना नहीं चाहते। अगर ये सवाल है टिंगरा साहब कि अपनी अपनी कन्वीनियंस देखते हैं सारे, ये बात है। और जहां तक तो मुख्यमंत्री की बात है, जो बात अभी ढूल साहब ने कही कि मुख्यमंत्री ने एक नया ही प्रारूप दे दिया कि आप इस तरीके से कर लो और 6 लाख अमाउंट कर दो और उस तरीके से कर दो। हर एक बंदा अपनी अपनी मंशा, अपनी अपनी चीजें, अपना अपना जो सोल्यूशन है वो निकाल के बैठा है। तो इसके लिए मंशा पे सवाल तो है, भारतीय जनता पार्टी ये करना नहीं चाहती कि जब इनके कैप्टन अजय यादव या कुमारी शैलजा अलग सुर में बोले तो वो सरकार में नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? और हमारे यहाँ राजकुमार सैनी जी अगर कोई अलग भाषा में बात कर रहे हैं तो उसको इशू बनाते हैं। सर फिर ये लागू नहीं होता ना, सुन लो, फिर ये लागू किया ना हमने। तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी, हमने लागू करने का काम किया ना। ये किस चीज का पेपर है? इसी चीज का ही। अरे सुनो भाई, अगर इतना बढ़िया लागू किया होता तो गिरता नहीं। दूसरी बात, आप लागू कर लो ना, उसमें रुपया निकाल लो, अभी भी दूसरे पड़ा वहां पे। दूसरी बात ये, हमने आरक्षण किसी दबाव में नहीं दिया, किसी डंडे के वजह से नहीं दिया, जैसा कुछ लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको आरक्षण देना है, जिसका अधिकार बनता है, इसके अलावा भी अगर किसी का अधिकार बनेगा, अभी तो इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया, तब पता चलेगा वो चीज। एक मिनट, जितना बड़ा आंदोलन हुआ, 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया, क्या उसके बाद भी इसमें भी 2 डेटे हैं, इसमें भी 2 डेटे हैं, इनका दोहरा चरित्र है इसमें भी। कोई आदमी कह रहा है, और उसके बाद पहला सेशन कह रहा है 1 करोड़ हुआ, कोई कहता है 20,000 करोड़ हुआ, कोई कहता है 600 करोड़ हुआ। ये एक क्षण में मैं इनका उत्तर देना चाहता हूं, ये डाटा पर उलझना चाहता हूं। मेरी बात का जवाब दे दो। एक मिनट में आपकी बात, चलिए मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। आंदोलन करना हर जाति, समूह, वर्ग का अधिकार है डेमोक्रेसी में। नहीं, लेकिन क्या उनको छूट दे देना कि किसी भी चीज का नुकसान करो? एक क्षण सुनिए तो सही, किसी उपद्रवी को कतई कोई छूट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिली? उन्होंने सारा हरियाणा में नुकसान पहुंचा दिया। इनकी सरकार धूप सेक रही थी हरियाणा के अपने सीएम ऑफिस के अंदर। वो लोग हम पर सवाल उठा रहे मेरे बगल में बैठ के, जिन पर हरियाणा में आग लगाने का अधिकार है। अरे आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग की सरकार क्यों नहीं रोका?
ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ एक वाक्य ਕੌਸ਼ਲ में- ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ issue ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਆ ਰਹੇ बहुत पुरानी बात है। ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ मैं फिर कह clear रहा दे हूं, दो। कानून के दायरे में किसी नागरिक को इंक्लूडिंग राजकुमार सैनी अगर किसी को सुरक्षा बनती है, हमने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी दे रखी है सुरक्षा, जिसकी बनती है उसको समीक्षा करके मिलनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात सुन लो भाई, सिक्योरिटी की बात हो रही है, किसको क्या मिले, जेड वो सिक्योरिटी। किसको क्या मिले, सुनिए, किसको क्या मिले वो उसके नॉर्म्स नहीं, हैं। यहाँ बात है ना आप- जेड सिक्योरिटी। अरे भाई सिक्योरिटी। नॉर्म्स, यहाँ बात है जेड सिक्योरिटी। जेड सिक्योरिटी मैं फिर कह रहा हूँ, जो नॉर्म्स हैं उससे बाहर नहीं जा सकता। हम आरक्षण भी दे रहे हैं, संविधान के कानून के दायरे में दे रहे हैं, किसी के MP दबाव में नहीं दे रहे हैं। और ये आखिरी कमेंट। ये लोग ऐसी हालत करके गए थे, मैंने कि वाइंड अप जिसमें- करना है, आखिरी कमेंट। आखिरी कमेंट ये थी कि हम बात कर रहे हैं दबाव की बात कर रहे हैं, तो मैं नुकसान की बात कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं। हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि हरियाणा के अंदर यह दो प्रकार से, एक तो आंदोलन था और दूसरी थी अराजकता। आंदोलन और अराजकता को एक साथ मिक्स ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि अराजकता में सभी जातियां चाहे कोई भी हो अपने अपने समय पर लोकल लेवल पर वहां पर शामिल रही हैं। उसको हर जगह पर आंदोलन के साथ जोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। और जहां तक नुकसान की बात है तो 650 करोड़ के आसपास का जो ऑफिशियल आंकड़ा है हरियाणा सरकार की तरफ से तो इतना ही है। बाकी तो मामला अदालतों के संज्ञान में है। किसी उपद्रवी के सामने झुकने का प्रश्न ही नहीं उठता। उपद्रवी किसी भी आंदोलन करना किसी का भी अधिकार है, किसी वो भी राजकुमार सैनी का भी हो जाति सकता है, का गट्टू का भी हो तस्वीरें सकता और है। जितने वीडियोज आए हैं उसमें बहुत कुछ पता चलता है। क्या रोशनलाल सैनी को छिपाने की कोशिश हो रही है? पुलिस किसी को रोक- चलो मैं बहुत ज्यादा लंबी बहस में नहीं जाना चाहता, हम बिल पे बात कर रहे हैं। नुकसान किया, मुझे उनके आखिरी खिलाफ कार्रवाई आप होगी। उसको आखिरी कमेंट्स मुझे चाहिए कि अभी कब तक आप इसको फाइनलाइज कर दोगे? हमारा कमिटमेंट ये है कि इस सत्र में बिल आए और संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए जिसका जो अधिकार मिलता है वो उसको मिले। किसी का कम करने का सवाल ही पैदा नहीं ठीक है होता साहब, और आखिरी किसी कमेंट को बहुत- फालतू बहुत देने का काट सवाल शब्दांश। पैदा नहीं होता। देखिए इन्होंने अभी बात कही, अभी तक प्रारूप इनका तैयार नहीं हुआ, तो बार-बार 4 एक दिन बात में कह रहे हैं, प्रारूप तैयार नहीं हुआ। शासन 31 कैबिनेट तारीख ने तक है। approve चलो कर दिया। बाकी बात- बात किसे मंजूरी ये प्रारूप देती है, तैयार किसे है, इजाजत कैसी देती होनी है बात जी? है? कब रखेंगे ये तो सरकार प्रारूप खैर तैयार होगा अन्ना तो नहीं रखेंगे। कर- बाकी बात रह रही प्रारूप इनकी कैसे तैयार होगा? कैबिनेट जो ये approve कर बात कर चुकी रहे है। हैं, अगर ये दोहरा मापदंड नहीं अपना रहे होते तो आज बता दे इतनी देर हो गई, राजकुमार आर्य जो हैं, रोशनलाल आर्य जो हैं, अंडरग्राउंड है उनके वो। खिलाफ क्या कार्रवाई की इन्होंने? अंडरग्राउंड है वो। कौन सा पर्चा दर्ज? वो 35/1 बिरादरी को बांटते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। वो देशद्रोह नहीं है, ये देशद्रोह एक छोटी छोटी बातों पे साबित करना चाहते हैं, चलो। जिन्होंने कुछ बोला भी नहीं है और जिन्होंने बिल्कुल जिस- बांटते हुए दिखाए गए हैं वो जिसने- देशद्रोह है। जिसने और कानून उसके- तोड़ा, उसके लिए जो कानून उसके लिए- तोड़ेगा, अरे उसके लिए तो है, जिसने उसके लिए तो कानून अंतर तोड़ा, कर दो आप उनको। सुनिए, लेकिन जहां तक जिस आदमी ने मुकदमा दर्ज हुआ जिस है, आदमी ने अरे जिस आदमी मुकदमा का ये दर्ज हुआ बात है, कर रहे हैं, उसके उसके लिए खिलाफ कोई मुकदमा धरपकड़ दर्ज नहीं हुआ है, है। उसके चलो, लिए अब कोई मेरे कानून पास नहीं टाइम है, नहीं है, मैंने उसके लिए देशद्रोह का कानून नहीं लगता। मैं तो- प्लीज प्लीज कानून प्लीज तोड़ने वाला विजय जी कोई भी हो, हाँ। कानून तोड़ने ਉਹਨੂੰ वाले ਸਜ਼ਾ को ਮਿਲੇਗੀ, बख्शने ਠੀਕ का ਹੈ। कोई सवाल ਕੌਸ਼ਲ पैदा ਸਾਹਿਬ नहीं ਆਖਰੀ होता। ਕਮੈਂਟਸ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਰਸਤਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੂੰ। ਔਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਹੂੰ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੂੰ। ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹਿੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੀਰਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ
ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ विचार अच्छा है लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयां हैं इसमें। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੇ ਔਰ ਚਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵੀ ਤੇ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹੈ। ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।